हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक हमारा हो चुका था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। ओके, नाउ we are going to learn about sexual reproduction in human being. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी किस हार्मोन का काम है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन करना। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी occurring during onset of sexual maturity. Third one question है, why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage is 18 in girls and 21 in the boys. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हम शॉर्ट्स में देख लेंगे। फिलहाल हम इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वी हैव studied in a chapter of hereditary and variation that men have XY chromosomes and women have XX chromosomes. Reproductive system with specific organs develops in the body of man and woman due to these sex chromosomes. हमने ये पढ़ाई की थी कि जो हेरिडिटी इवोल्यूशन है उसके अंदर XY क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है बॉय के लिए और मैन के लिए, जबकि XX क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है गर्ल के लिए या फिर वुमेन के लिए। ओके, now reproductive system with specific organs develop in the body of man and woman due to this sex chromosome. So whatever the organs which distinction between the male and the female by their reproductive organs is decided by chromosomes, XY chromosomes or XX chromosomes. If the reproductive organs are developed by XY chromosome, that means he is a man, and if the reproductive organs developed by XX chromosome, that means girls. So X chromosome is present in man and woman. X chromosome is present man as well as woman, but the Y chromosome is present only in mans. So now we shall study the structure and function of reproductive system. So on the basis of XX chromosome and XY chromosome, there are two reproductive system, two types of reproductive system. So it is a male reproductive system. And responsible by XY chromosomes, and it is a female reproductive system whenever the chromosomes are XX. Okay, so see here now. See here, human male reproductive system. Male reproductive system of human consists of testes, various ducts and the glands. Okay, these are present in the scrotum. तो फिगर के साथ हम पढ़ते हुए चलते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है पेनिस जिससे सीमेन का इजैकुलेशन होता है, ये है एरिया स्क्रोटम का, और इन बिटवीन द स्क्रोटम testes are present. It is a scrotum and these are the testes. Now it is a urinogenital duct. These are the Cooper's gland. These are the prostate gland, and this is the vasa differenza. Okay, now see more options. Seminal vesicles. These blue colors organs are seminal vesicles, and it is a urinary bladder. Now see here, male reproductive system consists of testes present in the scrotum. तो ये जो टेस्टिस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये किस में प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। Okay, now
Outside the abdominal cavity, testes contain numerous seminiferous tubules. These testes contain number of numerous tubules. Abdominal cavity, testes contain numerous seminiferous tubules. Germinal epithelium present in the tubules divided by meiosis produce to sperm. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, इसमें होता है जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूबल्स. ट्यूबल्स में क्या प्रेजेंट होता है, जर्मिनल एपिथेलियल, एंड these are divided by the process of meiosis, and after meiosis it produce the sperms. It produce the sperm. Who present the sperms? From the testes by the seminiferous tubules. So these sperms are sent forward थ्रू वेरियस ट्यूबल्स. तो ये जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये अदर ट्यूबल्स के थ्रू क्या होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं. सीक्वेंस ऑफ दिस ट्यूबल्स इज एज टेस्टिस, वासा एफ्रेंसा, एपिडिडिमिस. तो अब ये जो ट्यूबल्स से सीक्रेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं कौन, स्पर्म्स, वो कहाँ जाते हैं, टेस्टिस. टेस्टिस से वासा इफ्रेंस में जाते हैं. वासा इफ्रेंस में जाने के बाद वो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस से नहीं बल्कि वासा इफ्रेंस से, यानी कि इधर साइड से वासा इफ्रेंस से जाते हैं, फिर एपिडाइडिमिस में जाते हैं, उसके बाद वाइसा डिफरेंस में आते हैं. किधर आते हैं, इधर आते हैं. एंड इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट, as the sperm are pushed forward from one due to next, they become mature and able to fertilize the ovum. और उसके बाद ये एपिडिमिस में आते हैं. कहाँ आते हैं, एपिडिमिस में. देखिए सीक्वेंस ऑफ दिस ट्यूबल्स इज रेड टेस्टिस. टेस्टिस से वो कहाँ जाते हैं, वासा एफ्रेंस में जाते हैं. सी टेस्टिस, टेस्टिस से वासा एफ्रेंस में, वासा एफ्रेंस से एपिडिडिमिस में, यानी कि इसमें जाते हैं, इस एरिया में. इस एरिया के बाद वो वासा डिफरेंस में जाते हैं, यानी इस एरिया से होते हुए वो कहाँ जाते हैं, ये वासा डिफरेंस, इस एरिया में जाते हैं. वासा डिफरेंस में जाने के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि ये जो डक्ट है, ये वाली डक्ट और ये इस तरह से आते हैं ये, और इधर आते हैं, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आते हैं और पेनिस से रिलीज हो जाते हैं स्पर्म्स. सो दिस इज द प्रोसेस. सो दे बिकम मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम. और जब वो है कि नहीं क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, कहाँ से, पेनिस से, तो दे आर एबल टू फर्टिलाइज द ओवम एंड दे बिकम अ मैच्योर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Seminal vesicle secretes their secretion in ejaculatory duct, where prostate gland and Cowper's glands secrete their secretion in the urinogenital duct. जो सेमिनल वेसिकल होते हैं वो कहाँ पे इजैकुलेशन करते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में, जबकि कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड्स उनका सिक्रेशन कहाँ करते हैं, secrete their secretion in urinogenital duct. Semen is formed of sperm and secretion of all these glands. तो semen is formed of sperm and secretion of all these glands. Semen is ejaculated out through penis. Semen किस तरह से ejaculate हो जाता है, penis के through. All the organ of male reproductive system are paired except urinogenital duct and penis and scrotum. कि ये जो scrotum है, उसके बाद पेनिस है, और क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये स्क्रोटम, और स्क्रोटम से कौन है, ये जो पेनिस. ये सब कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं. कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं. सेमिनल वेसिकल कैसी है, पैर में है. ओके, क्या मसला है. सेमिनल वेसिकल कैसी है, पेयर्स में है. प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, पेयर्स में है. वास डिफरेंस किस तरह से है, पेयर्स में है. कॉपर्स ग्लैंड भी किस तरह से है, पेयर्स में है. बट द यूरिनोजेनिटल डक्ट इज सिंगल. ओके, एपिडिडिमिस भी किसे हैं, पैर में है. स्क्रोटम इज सिंगल एंड पेनिस आल्सो सिंगल, टेस्टिस आल्सो इन अ पेयर्स. सो दिस द fact. Okay, now see here some surprising facts. Length of each epididymis is about 6 meters.
Length of sperm is about 60 micrometers. Such a small sperm has to cross the distance approximately 6.5 मीटर while passing out of male reproductive system. जब स्पर्म क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज हो जाता है तो वो कितना डिस्टेंस फासला तय कर पाता है 6.5 मीटर. स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस. फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमन. सीमन में क्या प्रेजेंट होता है? फ्रुक्टोज होता है. और स्पर्म को ट्रांसफ़र होने के लिए ये डिस्टेंस को तय करने के लिए कितना टाइम लग जाता है, क्या होता है, एनर्जी दरकार होती है बहुत सारी. ओके, दे नीड द एनर्जी. नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा आसान है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह बहुत सारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं हैं. इट्स वेरी सिंपल. वेजिना, it is a uterus, this pink color is, and it is a ovary where ovules are present, and it is a oviduct. Okay, now see here, ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी. जितने भी ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो इन बिटवीन द बॉडी होते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर नहीं होते, जबकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आउट ऑफ द बॉडी होता है. ओके, नाउ इट इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरीज की यहाँ पे क्या बनी हुई होती है? पेयर बनी हुई होती है. और एंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट. और ओविडक्ट की भी क्या होती है? पेयर बनी हुई होती है. और ओवरीज की भी क्या बनी होती है? पेयर बनी होती है. नाउ सिंगल uterus and vagina besides a pair of bulbourethral glands is also present. बट जो यूटेरस और वेजिना है वो कैसा है? सिंगल है. किस तरह से है? सिंगल है. एंड a pair of bulbourethral gland is also present in it. Generally every month an ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary. Each ovary से alternately यानी कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से, जो भी ovaries है वहाँ से क्या होगा के ओवम रिलीज्ड होंगे ईच मंथ. ओके, नाउ फ्री एंड ओविडक्ट इज फिनल लाइक. और जो ओविडक्ट होता है ये कैसा होता है? फिनल लाइक होता है. एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. और इसकी जो ओपनिंग होती है वो सेंटर में क्या होती है? प्रेजेंट होती है. oocyte इंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग. और oocyte भी वहाँ से क्या होते हैं? इंटर होते हैं. नाउ सी हियर, oocyte enter the oviduct through that opening. Cilia are present on inner surface of oviduct. oviduct का जो होते हैं उसके अंदर ऐसे बारीक बारीक क्या होते हैं? cilia present होते हैं. and this cilia pushed oocyte towards uterus. और यहाँ पे जो भी हमारे पास ओवम होता है तो जो oocyte फॉर्म होता है ये cilia क्या करते हैं? आगे की तरफ पुश करते हैं ताकि ये क्या हो जाए? यूटेरस में चला जाए. कहाँ पे चला जाए? यूटेरस में चला जाए. सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ सी व्हाट इज द गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है? बोथ गैमेट्स, स्पर्म एंड द ओवम, स्पर्म फ्रॉम मेल एंड ओवम फ्रॉम फीमेल, आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस. किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मैन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन प्यूबरिटी टिल डेथ. मैन के अंदर जो स्पर्म फॉर्म होता है वो कब होता है? फ्रॉम द प्यूबरिटी पीरियड, फ्रॉम द प्यूबरिटी पीरियड टिल द डेथ, यानी कि मरने तक के ये जो है स्पर्म का फॉर्मेशन जारी रहता है. हाउएवर इन केस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन वुमेन्स में बर्थ से ही इमेच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं. इमेच्योर oocytes क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. और कितने होते हैं? फ्रॉम 2 to 4 मिलियन इन द ओवरी ऑफ फीमेल फिटस. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फीमेल के ओवरी में. एंड oocyte मैच्योर एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैटरिटी. लेकिन ये मैच्योर कब होते हैं? एट द एज ऑफ प्यूबरिटी. और प्यूबरिटी के एज से वो क्या होते हैं? फिर एवरी मंथ रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. oocytes क्या होते हैं? रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. एंड ये अप्रोक्सीमेटली कब तक होते हैं? 4 to 5 years ऑफ द एज. सो दिस ईयर्स इज कॉल्ड एट द मेनोपॉज एज बिकॉज व्हेनेवर द oocytes आर स्टॉप टू रिलीज्ड एट अ पर्टिकुलर एज इज अ 45 to 50 years एज. सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इधर स्टॉप ऑफ बिकम्स इरेगुलर. दिस कॉजेज द मेनोपॉज. और इस प्रोसेस के लिए, मेनोपॉज के लिए, टू स्टॉप द oocyte releasing some hormones are responsible for there and some hormones control the overall process of menopause. तो this process is called as the menopause or irregular of a
menstrual cycle. Now second process is the fertilization, formation of zygote by union of sperm and ovum. It is a ovum and it is a sperm. Okay, when they both combine, the zygote is formed, is called as the fertilization. Fertilization is internally human. Semen is ejaculated in vagina during copulation. Whenever the female and female copulate to each other, semen is transferred or ejaculated into the vagina of a female organ. In the number of few millions start their journey by the root of vagina, and the sperms start their journey if on the path of the vagina. Vagina से वो कहाँ जाएगा? यूटेरस में, और यूटेरस से कहाँ जाएगा? sperm goes into the vagina, from vagina to uterus, uterus to oviduct. One of the few million sperm fertilize the only ovum present in the oviduct. So on one of the few million sperm fertilize the only ovum present in the oviduct. From the age of puberty up the menopause, from 10 to 70 years of age to 45 to 50 years, and ovum is released every month from the ovary. तो जो प्यूबरिटी का पीरियड होता है 10 to 17 ईयर्स का, वहाँ से क्या होता है, oocyte मैच्योर होकर रिलीज होना चालू होते हैं, और ये प्रोसेस हर मंथ चलता है. और कब तक चलता है? 45 to 50 ईयर्स ओल्ड तक चलता है. आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन ओवा, अप्रॉक्सीमेटली ओनली 400 oocytes आर रिलीज्ड. और जब मेनोपॉज करीब आता है तो कम से कम 400 oocytes रिलीज्ड हो जाते हैं. रिमेनिंग oocyte अंडरगो डीजनरेशन, और अगर कुछ oocyte बढ़ जाते हैं तो वो डीजनरेशन में चले जाते हैं, उनका कुछ भी जनरेशन नहीं होता है. और ये प्रोसेस है स्पर्म का, ये है oocytes. ये बड़े वाला है oocytes, और ये जो स्मॉल है ये स्पर्म है, और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, द फर्टिलाइजेशन इज बिगिन एंड zygote is a form. Now oocytes released from ovaries during the last few months nearing the age of menopause are 4 to 5 years. और oocyte क्या टोटली कब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं? नियरिंग 40 to 50 ईयर्स ओल्ड. देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज़ बीन डिमिनाइज्ड टिल नाउ ड्यू टू दिस. और जो उनके अंदर एबिलिटी होती है ज़ाइगोट फॉर्म करने की, एबल टू गिव अ चाइल्ड बर्थ करने की, वो क्या हो जाती है? डिमिनाइज्ड हो जाती है, लॉस हो जाती है. ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो मियोटिक डिवीजन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली. एंड इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड, द न्यू बॉर्न्स प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी विद सम एबनॉर्मलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम्स. लेकिन 40 या 50 के एज के बाद भी अगर कुछ ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और चाइल्ड बर्थ होती है, तो वो न्यूबॉर्न में भी एबनॉर्मलिटीज़ के साथ क्या होता है? बर्थ होता है, लाइक अ डाउन सिंड्रोम्स. तो डाउन सिंड्रोम जैसी कैसी होती है बीमारियां भी हो सकती है. तो इसके आगे जो है सो हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ बर्थ, XYZ क्रोमोसोम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और क्या है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बैंक. ये हम क्या करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं. ओके, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय.